First of all, I would like to wish you very good morning, friends. Myself, Law, and I'm the physics lecturer in the virtual academy. Now, I'm here with a new day and a new topic. Why? Because our slogan is what we have to start new topic with a fresh day and new day. Now, today's topic is maybe unique. It's a fundamental forces in nature. Now it is our second part of the chapter number first, physical world. It is the second part of our chapter number first, physical world. And now today's topic is very important from the exam point of view and for the basic concept of view and complete life, for the complete life. Now it is what fundamental forces in nature, basically fundamental forces in nature. Before starting that topic in a detail, I would like to know from all of you that what is force. What is force? Force is nothing but it is what, simply अगर आपसे पूछो force क्या, तो आप बोलोगे सर force is nothing but force equal to mass into acceleration, यही बोलोगे आप. क्लियर है? बट ये लॉ किसने दिया था? बेसिकली जो फोर्स का लॉ है, F equal to ma, it is given by Sir Isaac Newton. It is our great scientist. Now basically force क्या होता है? Suppose if you want to perform any activity, suppose we want to break anything, suppose we want to break anything, suppose I want to change the shape of this marker, suppose I want to write something here, suppose I want to push this board from here to here, suppose I want to carry this marker from this place to this place, then it must require force. Suppose we, if you don't apply any kind of force on a body, then their displacement is not possible, and shape and size, if it is required to change, then there must be requirement of force. So simply force is what? Force is required to push anybody, to pull anybody, to change the position of body, to change the displacement from one place to another place of that body. Suppose if you want to break and deform any body, suppose I have a bottle, suppose I have a bottle, clear? Let's take example. I have a bottle, suppose I want to deform its shape, just like that, then I have to apply force on it. After that we can see that their shape may be deformed, so it must require also force. Clear? Suppose it is our cushion like that, it is our cotton. Yes, suppose if I want to change its shape, suppose it is like that, suppose I want to change its shape, so I will take in my hands and compress it. Now what is about it? Its dimension is totally changed, its dimension changed now. Yes, so it must require what? Force. So basically force, it is required for every activity. Suppose I want to explain anything to all of you, so it must require force. Suppose मैं बोलूं अगर मेरे से को फाइट करना है, suppose I want to fight with you, then क्या करना पड़ेगा? If I want to defeat you, at that time I must have a power. और पावर कहाँ से आएगा? हमें पर्टिकुलर फोर्स से. So we must have a force to change any body, to change the shape, size, dimension, to change its position. Clear? Suppose this is a chair, this is a chair, we can see that it is our, there is a chair in my hands. Suppose I want to change this position, then I have to apply force on it. Now initially it is here, now when I am going to apply force, then its position is going to change. It means what? If you want to change the position, deform the body, so it must require force. So basically force is nothing but it is applied on any body to change its position, to change its shape, size, structure. Clear? Now before completing that topic, forces, now we are going to discuss about fundamental forces in nature. There's a lot of forces in our physical world. There's a lot of forces in the physical world. Suppose I'm applied my power on it, I am forcing, so then at that I am using my muscular power. So there is a muscular force is applied when I want to break it. Suppose I want to break this marker, then at that time I apply what? Force. But with which kind of force? It's our muscular force, because I'm applying force on it from my body, so I am applying muscular force. Suppose I want to write something here like that, suppose I want to write something on a board, suppose I'm writing my name and giving my signature or autograph. Now at that time, if I want to write something on the board, then there must be friction. If there is no friction, then we are not able to write anything on the board. Now here I am giving a live example for your understanding, so you have to pay focus. And dear student, please say good morning to me, and please give me your thumb with your name. Now suppose I want to write something physics. Clear? I want to write
physics. Now, how it is possible? If I want to write something like that physics on this whiteboard, so it is possible because of friction force. Suppose of friction force. If there is no friction force, then we are not able to write anything. Suppose हम लोग लिखते हैं नोटबुक पे, टेक्स्ट बुक पे, वर्कबुक में, तो एट द टाइम अगर हमें पेंसिल से लिखना है मे बी, तो वहां पे आवाज आती होगी, आपने नोटिस किया होगा क्या? एट द टाइम वहां पे हमें वॉइस आती क्रिएट होती, जो हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम इरिटेशन क्रिएट करती, तो ना वहां पे वो इंडिकेट क्या कर रहा है? जब हम लोग पेंसिल से नोटबुक पे लिखे तो वहां पे इंडिकेट क्या, बट ऑब्वियस वहां पे फ्रिक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन बिटवीन that board, between the board and that marker, because of that friction we are able to write there. So there is a friction force, muscular force, contact force. Suppose ये मोशन में है ना, सपोज आई वुड लाइक टू चेंज दिस पोजीशन, तो ना मैंने इसको यहाँ से पूछ के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन तो हो रहा है, बट इसका बॉटम पोर्शन ना मेरे फिंगर्स का या हैंड का टॉप पोर्शन, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में, तो वहां पे क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स ना. बारिश में देखा होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दिस द ड्रॉपलेट ऑन द ग्रासेस, हमने देखा हो ना घास के ऊपर क्या होती है, ड्यू होती है घास के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ दैट वो ड्रॉप जो होता है बबल से, ऐसे बबल जो फॉर्मेशन होता है हमारे ग्रास के ऊपर, मॉर्निंग में देखोगे ग्रास के ऊपर जब चलते हो तो वहां पे ड्यू होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. ना सरफेस टेंशन इज आल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स, क्लियर ना. प्रेशर एक्ट होता है, अगर सपोज कोई हमारा सॉलिड है वो कनेक्ट है फ्लूइड में, तो वहां भी क्या होगा, प्रेशर एक्ट होगा, क्लियर. तो बेसिकली फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट फोर्सेस आर डिफरेंट टाइप्स, क्लियर. तो फोर्सेस एक्ट होंगे, बट उसका फॉर्म्स क्या होता है, अलग अलग, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, फोर्सेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर. तो ना बेसिकली हमने क्या स्टडी किया, मस्कुलर फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया ना. हमारे लाइफ में हमने देखा हुआ स्प्रिंग, अगर मैं बोलूं कि स्प्रिंग का एग्जांपल लू, सपोज आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग, मैं बोलना स्प्रिंग लो ना, स्प्रिंग है ऐसे इनिशियली ये है, ठीक है, इनिशियल स्प्रिंग का ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है. अब ये इनिशियली है, ठीक है, इनिशियल फेज पे ऐसा है, ये इनिशियल फेज है, क्लियर. बट ना सपोज मेरे पास ये पैन है, अब पैन है ना, उसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग ना, उस स्प्रिंग को निकाला मैंने और इसे फोर्स लगा रहा हूं, बट ऑब्वियस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सर्ट कर रहा हूँ फोर्स, बट फोर्स का डायरेक्शन, लुक एट माय पोजीशन ऑफ माय हैंड्स ना, मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स इधर और इधर, मतलब क्या बाहर आउटसाइड फोर्स लगा रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूँ, एक इधर से खींच रहा हूँ और एक इधर से खींच रहा हूँ ना. एट दैट टाइम सपोज इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, क्या है, 20 सेंटीमीटर एट इनिशियल स्टेट, एट एन इनिशियल स्टेट कितना है, इट्स अ 20 सेंटीमीटर. but when I am going to apply a force outside, तो ये क्या होगा, इसका ये कितना हो जाएगा, जब फोर्स यहाँ पे दोनों साइड आउटसाइड लग रहा था, कितना हो जाएगा, मे बी 40 सेंटीमीटर. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेच हो रहा है, मतलब टेंसाइल, तो ये भी इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स ऑन अ स्प्रिंग. Suppose I have a spring and I am compressing it. It means what? I am applying a force on this spring. It is a spring. I am applying force on this, but I am trying to compress it. Now, ये स्प्रिंग है ना, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, बट ऑब्वियस जब कोई फोर्स ना, जब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर कंप्रेस करूंगा, मतलब इधर अंदर दबाऊंगा, इधर से भी अंदर दबाऊंगा, बट ऑब्वियस इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ कम होगी, तो वहां पे क्या होगा, हमारा कंप्रेशन. तो वहां पे क्या होगा, कंप्रेशन. तो सिंपली टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स ना. बायोंसी ऑलरेडी पढ़ा होगा. बायोंसी क्या होता है, सपोज एनीबॉडी इज इमर्ज्ड इन अ वाटर, देन व्हाट इज अप्लाइड देयर own force and pressure on that body, and that body is come out from the water level, clear. तो बाउंसी फोर्स क्या होता है, अगर कोई चीज है इमर्ज वाटर में, तो वाटर क्या करेगा, एक अपना खुद का प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा, अपना बॉडी को कहां लाता है, ऊपर. बिकॉज ऑफ बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, जो हमारा शिप होता है रिवर के ऊपर क्या करता है, बोटिंग के टाइम देखा, जो हमारा शिप होता है पानी के ऊपर चलता है, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोंसी फोर्स ना. ये क्लियर हो गया, टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, मस्कुलर हो गया, क्लियर हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया. देन इंटरनल फोर्स भी होता है, मस्कुलर फोर्स भी होता है, टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव भी हो गया ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स. तो दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट, इट्स अ all type of forces.
बट वी हैव टू डील विद फंडामेंटल फोर्सेस नीचे। नहीं, ये क्या होता है टोटली, ये टोटली क्या होते हैं हमारे फोर्सेस, एक दूसरे से बेस पे डिराइव होकर है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डील विद बेसिकली फोर फंडामेंटल फोर्सेस नेचर ना। टॉपिक इज व्हाट, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर। नाउ बेसिकली फंडामेंटल मींस व्हाट, क्लियर होगा, जो अपने खुद के हैं, they are not going to depend on other forces. Fundamental forces means what, they are depend on it, they are not going to depend on other forces, clear? So basically there are four fundamental forces in nature exist right here right now. If I am here, then at the time there is a four fundamental forces is acting in a nature. So we are going to study in a detail today. Now it's our last lecture for the chapter number first, physical world. From tomorrow we are going to start chapter number 3, motion in a straight line. That is a very interesting chapter. Now we would like to know all which are they, which are they four forces. Now look towards it, look towards the blackboard, and please give me a thumb. If you are attending the lecture, then you have to give me a thumb. Now first first is what but nothing, it's a gravitational force. Gravitational force is a universal force. It is present everywhere in the world. If I'm going to talk about the gravitational force, it is present everywhere in the world. Suppose I would like to tell that gravitational force is present in India, but it is absent in Australia, Canada, America, or our enemy country Pakistan and China. Then it is true. No, it is false, because gravitational force is universal force. It is present everywhere. So if I'm going to tell gravitational force is not a universal, then I am absolutely wrong. Because why? Gravitational force is universal force. Now, after the gravitational force, we are going to deal with second force, that is electromagnetic force. Electromagnetic force. Electromagnetic force is what indicating combination of electric plus magnetic. We will also discuss in brief. And now I'm getting the good morning from the Anamika. Very good morning, Anamika. Very good morning, Dishita. A very good morning to all of you. Now after that, third. Third is no nothing, but we are very familiar with that. It is a strong nuclear force. It's a strong nuclear force. Clear? It is the most important topic of chapter number first. It is the most IMP topic of for the chapter number first from the exam point of view, from your educational point of view, for your knowledge point of view. Clear? So you have to pay focus during this lecture. Now fourth is nothing but it is a strong nuclear force. So it is totally like that. It is a weak nuclear force. Clear? Now, which are four forces? Which are four fundamental forces in nature? That are gravitational force. First is gravitational force. Second is electromagnetic force. Third is strong nuclear force, and fourth is weak nuclear force. So, before starting that topic, gravitational force is what? Universal force. देखा होगा. Electromagnetic force देखा है, experience किया, but we don't have a proper knowledge about that. So today we will get some knowledge and complete knowledge about that. After that, we have a complete information about electromagnetic forces. Now, after that, strong nuclear force, and last is weak nuclear force. Now, these two forces are strong nuclear and weak nuclear force. मतलब क्या है, लास्ट जो दो फोर्सेस है टोटली डील करेंगे क्या, न्यूक्लियर फोर्सेस से. ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन हम क्या किए, हम ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या मैं अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स, so basically we already study about gravitational force. Now gravitational force क्या होता है? It is a force of attraction. It is the force of attraction. Now अगर डिटेल में स्टडी करें हम लोग किसके बारे में, gravitational force. We are going to discuss gravitational force in a detailed way, so we have to pay focus. Gravitational force. Now gravitational force. Now basically what is gravitational force? If I'm going to ask about gravitational force, gravitational force is a force of attraction. It is a force of attraction between two bodies because of their masses. It is a force of attraction
What gravitational force is a force of attraction. It is occur between the two bodies because of their masses, because of virtues of masses. अब मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, दो बॉडीज के बीच में. इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. क्यों, बिकॉज ऑफ देयर मासेस. सपोज मैं बोलूं कि सपोज इफ आई एम गोइंग on the 10th floor, suppose I'm going to on the top of the floor or a terrace. Suppose I would like to come out from the top floor to bottom or towards the earth. Suppose I'm taking a jump from that. क्या करते हैं, जाते हैं ना कैंप पे, तो हम देखते हैं वो मोस्ट ऑफ बिल्डिंग से जंप करते हैं अंडर द किसके गाइडेंस पे, वहां पे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. सपोज मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, टॉप फ्लोर पे गया, तो मैं टॉप से मेरे को अर्थ सरफेस पे आना है, तो वहां पे से क्या होगा, वहां से मैं जंप करूंगा एंड दैट टाइम आई विल कम ऑन द अर्थ सरफेस. नाउ मैं टॉप फ्लोर से अर्थ पे आया बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, gravitational force. Because gravitational force is attractive force. Now that force is created, that force is created because of earth. This kind of force is exerted by earth. Now if I am going to tell you which is the main responsible thing for the gravitational force, it is nothing but earth. Earth is the main source and the major source for the gravitational force. So basically, if I'm going to discuss in a detail that what is gravitational force, the gravitational force is a force of mutual attraction. Gravitational force is nothing but force of mutual attraction between the two bodies. Gravitational force is nothing but it is a force of attraction, but it is a force of mutual attraction between the two bodies because of their virtues of their masses. तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्यों, बिकॉज ऑफ देयर मासेस. नाउ मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे था 10th फ्लोर पर, ये मेरा 10th फ्लोर है, ये क्लियर है, 10th फ्लोर है यहाँ पे टोटली ना, ये मेरा अर्थ सरफेस है. ना अभी मैं 10th फ्लोर पे खड़ा हूं. सपोज आई वुड लाइक टू कम ऑन द अर्थ सरफेस, मुझे कहां पे आना है, अर्थ पर. तो एट दैट टाइम I will die from the 10th floor. Now after the some time, after traveling the some distance, I would be on the earth surface. Now अब मैं क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे दिखूंगा आपको, क्लियर, मे बी दांत नाक बाहर वो सब बाहर होंगे, वो बात अलग है, बट मैं क्या होऊंगा, विथ इंस्ट्रूमेंट आऊंगा, ऐसे नहीं जंप मार रहा हूं, ठीक है. तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ आऊं, पूरी प्रोडक्शन के साथ आना, आफ्टर सम टाइम मैं यहाँ पे आऊंगा. नाउ फ्रॉम दैट 10th फ्लोर I am on the earth. क्यों, because of the attraction force, because of attraction force of earth, because of no attraction force of earth means gravitational force is there, gravitational force is there. So basically gravitational force is a force of attraction, it is a mutual force of attraction between the two bodies because of virtues of their masses. यहाँ पे क्या है, gravitational force force of attraction है, force of attraction, ये क्या है हमारा, force of attraction. ना मेन चीज क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट masses of the body, क्या masses of the bodies भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर. तो दो चीज क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड masses of the body. आफ्टर दैट ना अर्थ पे जितनी चीज है, अर्थ पे जितनी चीजें, दे ऑल मस्ट experience gravitational force. Suppose this is a chair on the surface, on the floor. Suppose this is a board on the wall. This is the AC. This is a table. Everything on the earth, all the things are experiencing gravitational force. Why? Because earth contain attractive force because of masses. Now अगर suppose मैं बोलूं body है, उसका मास ही नहीं है. अगर बॉडी है, सपोज बॉडी है, उसका मास ही नहीं है पॉसिबल, तो उसके ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. क्वेश्चन मार्क है. इफ आई हैव अ बॉडी विथ 0 ग्राम वेट, दे हैव अ नेग्लिजिबल वेट, उसका कोई वेट नहीं है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. नो भाई नहीं होगा. कैसे, अगर कोई बॉडी है, उसका वेट ना हो, उसका मास ना होगा, पॉसिबल है नहीं है. अगर कोई बॉडी, तो बट ऑब्वियस उसका मास तो होगा. सपोज मैं पेपर की बात कर लूं, तो अगर पेपर को तुमने कहां पर टॉप फ्लोर से गिराओ, तो बट ऑब्वियस वो अर्थ सरफेस पे आएगा, बट ऑब्वियस वो अर्थ सरफेस पे आएगा. क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस करा ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पे है और उसका मास है, तो उसके पास क्या होगा, मस्ट वो एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स.
Now, because of the gravitational force, everything on the earth surface can be survived. और gravitational force से तो सभी surface, सभी चीजें, सभी instrument क्या होंगे, सभी bodies, maybe animals, birds, insects, or the human being also can survive on the earth. Suppose there is no gravitational force, then we can't survive on the earth. Clear? Now, अगर example देखना है space में, अब एक स्पेस का एग्जांपल ले लो भाई, सबकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ की बड़ी बड़ी बातें करके हाँ सर अट्रैक्शन है, सभी चीजें अर्थ पे रहती है, बट हम लोग स्पेस का एग्जांपल ले, स्पेस पे जाते हैं, पता है फूड कंटेंट कम लेके जाते हैं। अगर हम स्पेस पे जाते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू ट्रैवल इन स्पेस फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, एट दैट टाइम we are not able to carry a lots of food and a packets of food because there is the absence of gravitational force. Instead of taking the food, wafers, snacks like that, other foods, junk food, maybe Maggie, pizza, burger, vada pav, like that. In spite of that, we are taking a oxygen cylinder. Oxygen cylinder, because to survive in a space, we must require this oxygen. Now there is a absence of gravitational force. वहां पे क्या है? Absence of gravitational force. So आपने देखा होगा कभी भी अगर ज्योग्राफी पे देखते हो पर्टिकुलर फोकस, तो वहां पे सभी बॉडीज क्या होती है, स्पेस के अंदर मूव करती है. They are not fixed like us. अगर हम लोग अर्थ सरफेस पे स्टेबल है, फिक्स है, but that body are not stable on the space because there is absence of gravity, because there is absence of gravity. Now suppose I'm going to talk about the gravity of moon. अगर मैं बात करूं ग्रेविटी ऑफ मून, क्या बोल रहा हूं, ग्रेविटी ऑफ मून की बात करूं, तो वहां पे क्या होगा, सपोज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेविटी ऑफ मून, तो उसके बारे में अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बस याद रखना अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है ना, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मून, तो वहां पे क्या होगा, 1/6 होगा ऑफ द अर्थ. मतलब क्या, जो मून पे ग्रेविटी होगी तो वहां पे मास क्या होगा, मास ऑन मून, मून पे मास क्या होगा, 1/6 ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ पे 6 kg है तो मून पे 1 kg है, 1/6 ऑफ द अर्थ. If I am going to talk about the masses, क्यों, because of the difference of the gravitational force, because of the difference the gravitational force. मैंने क्या बोला, मास ऑन अ मून, मून पे मास क्या है, तो 1/6 ऑफ द अर्थ. 1/6 मतलब अर्थ पे हमारा 6 kg है, तो मून पे क्या होगा, 2 kg, 1 kg. क्लियर. सपोज मेरा वेट है 60 kg, सपोज मेरा वेट है 60 kg, क्लियर है, 60 kg, बट मून पे क्या होगा, मून पे क्या होगा, तो व्हाट 60 kg इज ऑन अ मून, ऑन द अर्थ एंड 6 है. यहां पे क्या मैंने बोला, अगर 1 kg वाला मून पे तो अर्थ पे 6 है, अर्थ पे 6 है. बट अगर मेरा मास कितना है, अगर मेरा मास 60 kg है अर्थ पर, अर्थ पर, तो मून पे क्या होगा, 1/6, तो डिवाइड बाय 6, हमारा क्या होगा, 10 kg on the moon. Clear? So whatever we have a masses in terms of kg, they are divided by 6. Suppose मेरा मास है अर्थ सरफेस पे 90 kg, 90 kg on earth. Clear? 90 kg on earth. Suppose I want to know what is my mass on the moon. तो मून पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मून पे क्या होगा. तो सिंपली मैंने क्या बोला, 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ द आवर, तो 90 kg अर्थ पे, तो व्हाट अबाउट मून, तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या है, 90 डिवाइडेड बाय 6, इट्स अ 15 kg on moon. Clear? Suppose if you want to find out the masses on the moon, then at that time we divided that masses in terms of kg by 6. We divide that masses by 6. Then after that we will complete information what is my mass on the moon. Now after computation of gravitational force, it is a force of attraction. Clear? क्यों होता है, because of their masses. कहाँ पे एक्ट करता है, अर्थ सरफेस पे. मेन सोर्स क्या है इसका, अर्थ है. क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज अर्थ क्या करती है, ग्रेविटी फील को हराती है हर एक सब्सटेंस को, हर एक मटेरियल, हर एक बॉडी को. क्लियर. नाउ अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं ना, तो भी ऑल्सो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. ना बोलोगे सर ये कैसे, आप कैसी बात करो सर, तो यस, द मोशन ऑफ अ मून, द मोशन ऑफ अ मून, सन, planet, artificial satellite, they all are also experiencing they all are experiencing gravitational force. Suppose मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, sun, moon, earth,
then artificial satellite. Clear? Sun, moon, artificial satellite, Earth, and planets. They all are experiencing gravitational force. What? Gravitational force. Clear. Now we have a complete vision of gravitational force. After that, we are going on the next topic. That is what? That is our electromagnetic force. Now, the range of gravitational force is very large. The range of gravitational force is very large, and it is universal force. मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? Gravitational force is universal force. It is present everywhere on the earth. It is present everywhere on the earth. I'm not going to tell you that it is present on the space, but I'm telling that it is present on the earth surface. It is a universal force. It is a force of attraction. Just ये क्या है? Attractive force. नॉट अ रिपल्सिव फोर्स। क्या कोई बॉडी अर्थ पे क्या धक्का मार के ऊपर स्पेस में भेजती है? नो, आई एम रॉन्ग। सब बॉडी क्या होती है? अर्थ पे सर्वाइव कर रही है ना। अर्थ पे कोई भी बॉडी ऐसी नहीं कि ऊपर जा रही उल्टा, ठीक है? तो जितनी बॉडी अर्थ पे, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। नाउ आफ्टर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें वी आर गोइंग टू डील विथ electromagnetic force. Now electromagnetic force, it is indicating what? It is also indicating what? Electric plus magnetic. Electric force plus magnetic force, it forms electromagnetic force. Electromagnetic force. Clear? Electric plus magnetic, it forms electromagnetic force. Now, sir, what is electromagnetic force? तो बेसिकली दिख रहा है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इट फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ना सर ये होता कहाँ है? अगर मैं पूछूं सर होता कहाँ है, तो कहाँ सर बताओगे? ना, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द चार्जेस. ये जो फोर्स होते हैं कहाँ होते हैं? चार्जेस के बीच में, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. क्लियर? इन चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ होता है, तो ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? बिटवीन द चार्जेस. चार्जेस में भी लाइक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मे बी न्यूट्रॉन. क्लियर? तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ एक्ट होगा? बिटवीन द चार्जेस, and that charges are nothing but it is electron, proton and neutron. Before starting that topic, I would like to tell you that electron have a negative charge, proton have a positive charge, and nucleus have a positive charge, and neutron, it is neutral in nature. They have no charge. What? Neutron have no charge. Clear? So electron have negative charge, electron have, look here, electron negative charge, proton, it have positive charge, nucleus have a positive charge. Now nucleus have a positive charge. What? And now neutron, no charge. Clear? So just we have to remember these all four things. Electron have negative charge, proton have positive charge, and nucleus have positive charge, and neutron have no charge. Neutron means what? Neutral. Neutral have no charge. Plus 5, minus 5, it forms 0. It means what? It is neutral. So simply neutron have no charge. Neutron have no charge. Now electron have negative, proton have positive. Then sir, how it is possible nucleus have a positive charge? So basically ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस. क्लियर? अगर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है ना. न्यूक्लियस फॉर्मेशन किससे होता है? तो न्यूक्लियस सिंपली फॉर्मेशन किससे है? It is not given in your textbook. It is not given in your textbook. You have to pay focus here. I'm giving a lecture on it in a brief. We have to pay focus on it. It is not given in your textbook already. Now, nucleus is a formation of neutron प्लस प्रोटॉन. किससे बनता है हमारा न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किससे बनेगा? ये किससे बनता है हमारा?
इससे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ना हमारे यहाँ पे क्या होगा? हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? नो चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो नो चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बताओ, पॉजिटिव है ना, तो हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो ये हमारा न्यूक्लियस क्या है? इसके अंदर होगा हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। So in neutron, no charge, proton have positive charge. So no charge plus positive charge, it form positive. So nucleus have a positive charge. Clear? So simply electromagnetic forces acting between the charges, electron, proton, neutron, and the nucleus. Now complete information about the charges we are going to detail how it is possible. Now simply Coulomb's law. Coulomb's law is applied when charges in a static condition. Charges in a static condition. Simply we have a Coulomb's law. We will discuss in a brief in a 12th standard. We will get a complete information about the Coulomb's law in a detail. Now just we have to pay focus that you have to keep in your mind. Coulomb's law is applied. Coulomb's law is applied and used when the charge is in a steady condition. Charges in steady condition. At that time क्या होगा हमारा? Coulomb's law यूज करेंगे. क्लियर? उस टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे? Coulomb's law. क्लियर है? जब कब होगा हमारा चार्जेस? स्टेडी स्टेट कंडीशन. चार्जेस आर नॉट इन अ मोशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन. क्लियर? नाउ अब मैं बोलूंगा क्या जो मेन चीज है इस पूरी कोर इस चीज की, वो ना जो चार्जेस के बीच में लग रहा है ना, अगर हमारे चार्जेस में भी क्या होंगे? चार्जेस क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही होंगे, न्यूक्लियस होंगे, बस ये चार्ज ये चार ही में भी पॉसिबल है। और ना अगर मैं बोलूं हमारा चार्ज क्या होगा? मे बी अट्रैक्शन। यहां पे दो ही चीजें हो सकती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्लियर? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दो ही चीज पॉसिबल है। फर्स्ट क्या होगा? अट्रैक्शन में भी होगा या रिपल्सन। ये दो ही केसेस हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बस दो ही केसेस होते हैं, मे बी अट्रैक्शन या रिपल्सन। ना अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन? जब हमारा अनलाइक चार्ज होगा तब। अनलाइक चार्ज होगा तब। ना रिपल्सन कब होगा? जब हमारा लाइक चार्ज होगा तब। क्लियर? तो सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगेगा? जब वी हैव अ लाइक चार्जेस। नाउ व्हेन फोर्स ऑफ रिपल्सन इज एक्टिंग व्हेन वी हैव अ लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन, लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन। क्या? अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन, लाइक चार्ज है तो रिपल्सन। नाउ व्हाट इज अनलाइक चार्जेस? सपोज मैं क्या बोलूं, हमारे पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बट ऑब्वियस क्या है? अनलाइक चार्जेस, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अनलाइक चार्जेस तो यहाँ पे क्या होगा? मे बी क्या? डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर सपोज यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लाइक चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अट्रैक्शन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। बट अगर यहाँ पे मैं बोलूं नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं बोलूं यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस नहीं है। वहां पे क्या होगा? रिपल्सन। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स आवर रिपल्सन। नहीं, यहाँ पे क्या बोला? अनलाइक चार्जेस के बीच में नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला? रिपल्सन व्हेन देयर इज अ लाइक चार्जेस। ना लाइक चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। क्लियर? अगर दोनों चार्जेस क्या होंगे? सेम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो साथ में तो रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे तो रिपल्सन। क्लियर? सो वी हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। ना इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस। ना बट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? only one force, it is a force of attraction, but it is what? It is a force of attraction and force of repulsion because of like charges and the unlike charges. Clear? So after that, अब ना जहां पे ये क्या हो रहा टोटली, ये किससे डील हो गया? किससे डील किया हमने? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये किससे टोटली डील किया हमने? इलेक्ट्रिक। ना कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बट ऑब्वियस प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स बट ऑब्वियस होगा। क्लियर है? हमने स्टडी किया होगा ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th में ही,
Clear? If anyone have any doubt, then you can ask me fast. मैंने क्या बोला यहाँ पे कि बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में always must be attractive force, but in a electromagnetic force attractive or maybe repulsive because of their charges. Now electromagnetic force, it is what? Long distance force. It is a long distance force. After completing the electromagnetic force, मैंने क्या बोला, ये में भी क्या होगा, attractive and repulsive. Clear? बट हमारा ग्रेविटेशनल में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स. क्लियर? आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना, इसमें मेन चीज पढ़ना चाहोगे क्या है, ये पता है कहां पे एक्ट करता है, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल. कहां पे? एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, चार्जेस के बीच में. बट ऑब्वियसली कहां होगा, चार्जेस के बीच में ना. यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक तो हो गया, मैग्नेटिक कैसे होगा? तो बच्चों आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड टाइम में स्टडी किया था. अगर सपोज मेरा ये कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, मेरा कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है, कॉपर वायर. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सो इस पे मैं फोकस कर रहा हूं. कॉपर वायर है नहीं, हमारा क्या है, कंडक्टिंग वायर. बट ऑब्वियस क्या है, कंडक्टिंग वायर ना. यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पास, क्या पास कर रहा हूं, ये करंट, मतलब आई. क्लियर? क्या पास कर रहा हूं, करंट, आई. ना ये करंट कैसे हो रहा है हमारा, अलोंग विद द वाई एक्सिस, अलोंग विद द वाई एक्सिस. तो इतना याद रखना, अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर में आप करंट पास करोगे वर्टिकली, मतलब अलोंग विद द वाई एक्सिस, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. कैसे? अलोंग विद द एक्स एक्सिस, लाइक दैट. तो ये जो था तुम्हारा, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. बट ये क्या हमारा, ये क्या हमारा, मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वर्टिकल, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल. तो कभी भी याद रखना, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर, तो बट ऑब्वियस उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. बट क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. करंट पास करोगे अलोंग विद द वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग विद द एक्स एक्सिस. अगर वही सपोज तुम करंट यू पास करो, करंट यू पास करोगे, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बट ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके, अलोंग विद द वाई एक्सिस. क्लियर? ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? तो ये कहां पे होगा, हमेशा एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल. क्लियर? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. क्लियर? दोनों हो सकता है, बिकॉज ऑफ opposite charges, force of attraction and force of repulsion, because of like and the unlike charges. Now after that we are going to our next topic, that is nothing but it is a weak nuclear force. That is nothing but it is a weak nuclear force. Now weak nuclear force is nothing but weak nuclear force क्या होता है, क्या होता है weak nuclear force? It is nothing but it is acting at a one place. Weak nuclear force is nothing but it is a one kind of nuclear force, but it is weak in a nature as compared to strong nuclear force. Now weak nuclear force पूरे फंडामेंटल फोर्सेस में, सबसे पूरे फंडामेंटल फोर्सेस में वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सबसे वीक. क्या है, सबसे वीक. क्लियर? सबसे वीक. ना आफ्टर दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स सर होता क्या है, अगर सर आप बात करो तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां होगा. सो सिंपली इट इज कैन बी सीन
बीटा डीके न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां पे क्या होगा हमारा, मैंने क्या बोला, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, it is a weaker than as compared to other fundamental forces in a nature. Now it is present in a beta decay nuclear reaction. Now यहाँ पे बीटा डीके स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग हियर बीटा डीके, बट वी विल स्टडी अल्फा डीके, गामा डीके in our 12th standard. In that chapter we will discuss in a brief and we will get a complete knowledge. Just here for your information, we have to remember in our mind, weak nuclear force is occur only in a beta decay nuclear reaction. Clear? Where it is present, it is a beta decay nuclear reaction. जहां पे बीटा डीके का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, जहां पे बीटा डीके प्रोसेस होगी, वहां पे हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट होगा. नाउ आफ्टर दैट, नाउ जो बीटा डीके होता है, पता क्या करेगा, बीटा डीके होगा वो पता क्या करता है, इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो. क्या इमिट करता है, जब बीटा डीके न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, मतलब बीटा डीके, डीके मतलब इमिट करना, कमी करना, ना वो क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो, इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉनो. व्हाट combination of electron and neutron during the beta decay reaction, during the weak nuclear force, it is occur in a beta decay nuclear reaction. Beta decay nuclear reaction में emit क्या होगा, हमारा electron and neutron. Clear? After that, the completion of these, now ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल है. बट इन न्यूट्रॉन इट इज अ अनचार्ज पार्टिकल, इट इज अ अनचार्ज पार्टिकल. क्लियर? इट इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स किसमें होगा, सिंपली बीटा डीके यहां पे होगा, वहां पे बीटा डीके न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वहां पे. बट अब इसको कब होगा, तो बीटा डीके न्यूक्लियर जब रिएक्शन होगा तो वहां पे एमिट होगी दो चीजें, एक चार्ज पार्टिकल, एक अनचार्ज पार्टिकल. तो ना जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है क्या, नेगेटिव, नेगेटिव. बट जो दूसरे इमिट करेगा वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, हमारा अनचार्ज पार्टिकल. ना ये होता है वीक किससे, ये वीक है हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, ये वीक है हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से. बट ये स्ट्रॉन्ग होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से. जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से. बस बाकी सबसे क्या ये वीक है. क्लियर? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. वी हैव अ surety of a time, we have a less time, so we have to pay focus strong nuclear force. Last topic is nothing, strong nuclear force. Now strong nuclear force जो act होता है, it is basically क्या है, strong nuclear force. Before starting the topic, मैं बोलना चाहूंगा छोटे से, strong nuclear force is the strongest force among all the forces. Gravitational force, weak nuclear force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सभी स्ट्रॉन्ग, इसे सभी से क्या स्ट्रॉन्ग है, कौन, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ना अगर हम लोग बात करें ना, अगर बात करें इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर टर्म्स होता है 100 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्या है, मैंने क्या बोला, 100 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब 10⁻² टाइम्स ग्रेटर है किससे, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्लियर? आफ्टर दैट क्या हमारा 10⁻² टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. नाउ सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा कहां, सर वी हैव अ क्वेश्चन दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा कहां. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो बाइंड करता है किसको, बाइंड करता है ऑर्बिट के अंदर हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को. सपोज ये मेरा है न्यूक्लियस, ये मेरा क्या है पूरा न्यूक्लियस. तो ना इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, क्लियर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो टोटल होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर ना, इसके अंदर है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर्म करेगा न्यूक्लियस, क्लियर, बट इसके अंदर है क्या, है क्या, क्या है, सिंपली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हमारा ऑर्बिट पे है न्यूक्लियस के अंदर, वो अंदर क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बाइंड कौन करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना। यहां पे याद रखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहां पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट नहीं होगा, यहां पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ की तरह, अर्थ जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, वैसे हमारा यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर नहीं होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बाइंड करेगा न्यूक्लियस के अंदर, बट यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता जिससे अर्थ एक्ट करता है कि हमारा अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। बट सर यहाँ पे पॉसिबल कैसे है, यहाँ पे पॉसिबल कैसे, तो क्लियरली मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स among all the forces। अगर कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल सर, वी हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ इट इज पॉसिबल। तो सिंपली ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्ट नहीं करेगा, बट यहां पे रिपल्सन होगा कब, यहां पे रिपल्सन होगा कब, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस आएंगे तब ना। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू पुट इट ना। यहां पे इलेक्ट्रिक रिपल्सन होगा कब, जब यहां पे होगा क्या, इलेक्ट्रिक रिपल्सन होता है बिटवीन द प्रोटॉन। यहां पर इलेक्ट्रिक रिपल्सन कब होगा, प्रोटॉन के बीच में। क्लियर ना। ये जो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इक्वली इंपैक्ट करेगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है जब रिएक्शन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इक्वली इंपैक्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्लियर, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इक्वली एक्ट करेगा। क्लियर ना। आफ्टर द this complete vision, we have a complete information about gravitational force, strong nuclear force, weak nuclear force and the electromagnetic force। ना इसका न्यूक्लियर डायमेंशन बहुत ही छोटा है। इसका न्यूक्लियर डायमेंशन की अगर रेंज बात करें तो पता है 10⁻², न्यूक्लियर डायमेंशन क्या है, 10⁻⁻15 मीटर इसका nuclear dimension। Clear, it is very small in range। Suppose we are going to deal with nuclear dimension of strong nuclear force, it is very small, it is 10⁻⁻15 meter। So ये indicate कर रहा है 10⁻⁻15, so it is also a very small in a range, what, 10⁻⁻15 meter। Now after the completion of this topic, simply ना एक चीज है, जो न्यूक्लियर स्टेबल है हमारा, जो न्यूक्लियर स्टेबल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर। क्लियर, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर ना। आफ्टर completing this topic, we have completed 4 fundamental forces: gravitational force, strong nuclear force, weak nuclear force and electromagnetic force। Among these forces, strong nuclear force is strongest among the all, it is 100 times stronger than the electromagnetic force। Now after completion of this topic, we are completing our chapter number 1। Now already we have completed chapter number 2 on Saturday। Now we are going to start chapter number 3 just tomorrow, because our motto is what, we have to start new topic with a new day। So we will start tomorrow chapter number 3, motion in a straight line। Now here we are completed our chapter number 1 and chapter number 2। Now thanks for your kind attention, I would like to say bye। Now you will attend a next lecture, chemistry। Okay, say bye, bye, bye student to me, bye everyone।